Hey my dear lovely students, I hope that you all are very well at your home. I wish you a very good morning to all of you. As you all know that in the last video class we have completed our chapter, that is profit and loss, and we are supposed to start a new chapter today. So our new chapter will be simple interest. This is a very important chapter from your examination point of view, as in your term 1 examination you will get questions from simple interest also. So you are all are requested to study very well and watch the complete video so that you can understand the simple interest very well. If you all don't watch the video regularly and even do not watch the complete video, skip in the middle or leave the video in the middle, you won't understand anything clearly. So it is better to gain some important concept for your examination, and I wish you very best of luck for your upcoming examination. It can be particularly in any form, either through term 1 or periodic or test. I am not aware of any such things yet, but I wish you best of luck. You study sincerely and definitely you will succeed in your life. So without wasting any more time, let's start today's video on simple interest. That will be an introduction video, very important concepts for solving questions on simple interest. Simple interest. Okay, there are very important concepts in this chapter, but I'll take you there in few minutes. But let's take one example to understand simple interest better. Suppose you scored good in your examination and your father asked you that what do you want as a gift, and you thought of what should I ask for a gift. You asked for 1,000 rupees. You asked your father 1,000 rupees which he asked to give you. Okay, your father has gave you 1,000 rupees. So what will you like to do in this 1,000 rupees? Many more things. You would like to buy football, play any game, or buy any chocolates or something like that, anything. But your father gave these two options. After giving 1,000 rupees, your father gave two options. The first option was take your money now. Second option, take your money 1 year later. Okay, your father gave you two options, either to take your money now or to take your money 1 year later. So what would you choose? You would definitely choose to take your money now. Okay, why? Because you can purchase football, chocolates, shoes, anything you like, or any game console for playing games, video games, etc. So you will definitely take your money now. हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो बोलेंगे कि अभी अगर उनको काम ना हो तो 1 साल के बाद लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे जो लोग अपना पैसा अभी लेना पसंद करेंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो देयर्स अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिनेरियो. हो सकता है कि अगर आप 1 साल बाद पैसा लें तो पापा आपको पैसा देने से मना कर दे, बोले कि अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद देंगे, या फिर वो अपना माइंड चेंज कर दें. वो बोले कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 1,000 रुपीज आई एम परचेसिंग यू बाइसिकल. है ना, हो सकता है कि 1 साल बाद आपको पैसा पापा ना दें, बोले कि ये 1,000 रुपया के बदले हम तुमको एक बाइसिकल खरीद रहे हैं कम. ओके, सो दिस कैन बी पॉसिबल कंसेप्ट फॉर यू. ऐसा हो सकता है. सो व्हाट यू विल प्रेफर टू टेक योर मनी नाउ. ओके, बट in these two conditions there is a different condition with a bank. As you all are aware with the term bank, what do bank do? Bank mainly do two things. First, deposit, and second, loan. पैसा निकालते हैं, that is called withdrawal or transaction, that is also a different part. But what are the two main criterias for the bank are the deposit and the loan. So there is some other person, let it name be Edwin, EDVI,
N. Okay, let there be some other person, Edwin, and what he decided to deposit 100 rupees in bank. Edwin decided to give 100 rupees to bank. After 1 year, that is 1 year later, how much will bank pay him? Bank is paying him rupees 108 rupees. Okay. Initially, शुरुआत में, what did Edwin decide? Edwin decided to deposit 100 rupees to the bank, and bank will pay him 108 rupees 1 year later. So why is the bank paying him 8 rupees more? उसने तो सिर्फ 100 रुपीज जमा किया, तो बैंक उसको 8 रुपए और ज्यादा क्यों दे रहा है? Why is the bank paying 800 rupees more? This 8 rupees is the interest earned by bank. What is this 8 rupees? This 108 has two parts. What is the first part? Is the 100 rupees which is deposited by Edwin, and the other 8 rupees which is earned by the bank, जिसको बैंक ने अर्न किया है. बैंक कैसे पैसा अर्न करेगा? किसी को भी लोन देकर. ठीक है, अगर हमने 100 रुपीज पैसा जमा कर दिया बैंक में और कोई सेकंड पर्सन आता है, उसको 100 रुपीज का जरूरत है, तो बैंक उसको लोन देगा. अब बैंक ने उसको पैसा दिया तो बैंक उससे इंटरेस्ट लेगा. फ्री में वो पैसा नहीं देगा, बैंक उसको उससे इंटरेस्ट लेगा. तो दैट इज कॉल्ड द रिटर्निंग अमाउंट विच बैंक अर्न ऑन गिविंग लोन. तो बैंक जो लोन लिया, उसे वो पैसा अर्न किया. सपोज ही अर्नड 10 रुपीज ऑन 100 रुपीज, तो उस 10 रुपीज में से वो 8 रुपीज किसको दे दिया? हमको दे दिया, क्योंकि एक्चुअली में बैंक का तो खुद का पैसा है नहीं, वो पैसा हम लोगों का है. तो वो हम लोगों के पैसे से अर्न करता है, और वो पैसा का कुछ परसेंट इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर को देता है, जो कि यहाँ पर एडविन है. तो एडविन को कितना रुपया मिल गया? 100 रुपीज. उसका जो अमाउंट जो उसने जमा किया था वो 100 रुपीज तो इसका ही था, वो उसको मिल गया, और 8 रुपीज और ज्यादा मिल गया. ये ज्यादा क्या है? दैट इज द इंटरेस्ट. Okay, so this 108 has two parts, that is 100 rupees and 8 rupees. And what is this 100 rupees called? This 100 rupees is called initial amount. शुरुआती अमाउंट जो पैसा जमा किया गया, इनिशियल अमाउंट. इसको स्पेसिफिक टर्म अगर दें तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. Okay, and 1 year later he got 108 rupees. This 100 rupees is again his money, that is called principal, and it is denoted by P. सिर्फ इसको P से डिनोट करेंगे. And this 8 rupees is interest given by the bank. Interest given by the bank. और इंटरेस्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल, और जो ये 108 रुपीज जो हम लोगों को टोटल मिला, इस टोटल को बोलते हैं अमाउंट. क्या बोलते हैं? अमाउंट. तो अमाउंट दो चीज से बना होता है, एक है प्रिंसिपल और एक है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट. जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप लोग अपने अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, और अगर हमको मौका मिला तो डेफिनेटली आई टीच यू व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो हम लोग यहाँ पर जिस इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट. हम आपको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है. ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो 108 रुपीज मिला, ये क्या है? अमाउंट है. तो अमाउंट दो चीजों से बना होता है. किससे किससे बना होता है? एक है प्रिंसिपल, जो पैसा हमने जमा किया, और प्लस एक सिंपल इंटरेस्ट, जो उस पैसे पे इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है. आई होप इट इज क्लियर. जो 100 रुपीज जो इनिशियल अमाउंट हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल अमाउंट. समझने की भाषा में इनिशियल अमाउंट बोलेंगे. और अगर स्पेसिफिक टर्म की बात करें, ऐसा टर्म जो सबके लिए इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. और जो 108 रुपीज मिला आफ्टर 1 ईयर, तो उसको बोलेंगे दिस 100 इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड दिस 8 इज द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिवली कॉल्ड? दिस क्यूमुलेटिवली इज कॉल्ड अमाउंट. एंड व्हाट इज बेसिकली अमाउंट? अमाउंट इज बेसिकली द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड SI. हम आपको यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं. व्हाट इज प्रिंसिपल? द इनिशियल अमाउंट गिवन या डिपॉजिटेड टू द बैंक और टू एनीवन, जो किसी को दिया जाए या बैंक में डिपॉजिट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज द सम। क्या है ये? सम है। किसका सम है? प्रिंसिपल और एसआई का। ओके, हम लोग प्रिंसिपल समझे, अमाउंट समझे, और एक और क्या कंसेप्ट समझे? इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस इंटरेस्ट? दिस इंटरेस्ट इज द मनी अर्नड बाई बैंक और एनी पर्सन। कोई भी बैंक या कोई भी पर्सन जो पैसा अर्न करता है इन अ सर्टन टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। द सम ऑफ मनी या द अमाउंट ऑफ मनी या सिर्फ द मनी अर्नड बाई बैंक और एनी पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यहां पर लिमिटेड टाइम क्या है? 1 ईयर। अगर ये 2 साल होता तो हो सकता उसको कुछ ज्यादा पैसा मिलता, 3 साल होता तो उसको कुछ और ज्यादा पैसा मिलता, कम नहीं मिलेगा, है ना। कम के लिए कंसेप्ट अलग है। कम तब मिल सकता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, जो अमाउंट हमको मिल रहा है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या चीज समझा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप सबके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं। द अमाउंट और द सम ऑफ मनी। प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड और गिवन टू समवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए, मेरे लिए सिंपल भाषा डेफिनेशन का जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और समझाने के लिए सिंपल हम अगर उसको बोले, द इनिशियल अमाउंट इन एनी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। द इनिशियल अमाउंट इन एनी ट्रांजैक्शन आइदर डिपॉजिटिंग और गिविंग टू समवन। आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आइदर डिपॉजिटिंग or giving to someone is called principal। ये हो गया एक बेसिक सा डेफिनेशन मेरे लिए। क्या है? द इनिशियल अमाउंट इन एनी ट्रांजैक्शन आइदर डिपॉजिटिंग और गिविंग टू समवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, अब थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? अमाउंट पढ़ लेते हैं। अमाउंट क्या है? द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। What is amount? The sum of principal and interest is called amount. Okay? अब हम लोग एक और कंसेप्ट देख लेते हैं कि इंटरेस्ट और टाइम क्या होता है। जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डिनोट करते हैं आर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर is called rate of interest। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। 100 की जगह पर कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो किसी भी अमाउंट पर एक साल में हम लोग जितना पैसा अर्न करते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ₹8। 100 में कितना अर्न करता है? 108। अब एक और आता है टाइम। टाइम क्या है? एज यू ऑल नो,
समय, द सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट पे, फॉर एनी specific time period is called time. The sum of money lent at simple interest for any specific time period is called time. किसी भी specific समय के लिए जो sum of money lent मतलब दिया जाता है उसको बोलते हैं time. ओके, आई होप सबका डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा एंड दिस विल बी योर होमवर्क टू राइट द डेफिनेशन इन योर कॉपीज. ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और इसी में देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमने पढ़ लिया सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन टाइम का. अब सबका डिनोशन देख लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं P. इसके बाद आता है अमाउंट. अमाउंट को हम लोग देख लेते हैं ए से. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आर. और याद रखिएगा ये होता है परसेंट पर एनम यानी कि सालाना. यहाँ पे भी तीन कंसेप्ट है. पैसा जो है वो बहुत सारे तरीकों से दिया जा सकता है बट फॉर मोस्ट कॉमन इज पर एनम यानी कि हर साल. इसके बाद आता है हाफ ईयरली यानी कि 6 महीना. इसके बाद आता है क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ. इसके बाद आता है मंथली यानी कि हर एक मंथ के लिए. ओके, वो भी देखते हैं. रेट, परसेंट, टाइम. टाइम को आप सिंपली टी से डिनोट कर सकते हैं और कहीं कहीं आप एन से भी डिनोट किए हुए देखिएगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए. प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये हो गया डिनोशन. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आखिर निकालते कैसे हैं प्रिंसिपल, अमाउंट या फिर कुछ भी. उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में. ओके, तो उसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल वही वाला लेते हैं. सपोज करिए कि प्रिंसिपल जो है वो ₹100 है. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम जो है वो कितना है 1 ईयर. तो 1 साल के बाद आपको कितना पैसा निकलेगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट. क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई. फॉर्मूला हम सबसे लास्ट में लिखेंगे एज आई ऑलवेज राइट इट फॉर यू. तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है कि अमाउंट उसको कितना मिलेगा. कितना अमाउंट मिलेगा. तो अमाउंट निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट की ये 100 रुपीज जो है वो 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट अर्न करता है. तो 10% पर एनम यानी कि हर साल कितना परसेंट 10%. तो आपने परसेंटेज पढ़ा है. अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 100 से 100 कट गया. कितना रुपीज आ गया 10 रुपीज. यानी कि 1 साल के बाद उसको कितना मिलेगा 10 रुपीज मिलेगा. और उसका जो खुद का प्रिंसिपल जो उसने जमा किया था 100 रुपीज ये भी तो मिलेगा. तो अमाउंट कितना हो जाएगा अभी आपने पढ़ा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई. पीछे पढ़ा था फॉर्मूला एक ठो. तो अमाउंट निकाले अगर हम लोग तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इसका 100 रुपीज और ये एसआई कितना अर्न किया है 10 रुपीज. तो कुल मिलाकर इसको बैंक कितना पैसा देगा 110 रुपीज. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व. यहाँ पर रेट 10% था. अगर टाइम 2 साल होता तो क्या करते तो एक बार निकाले एक बार और निकालना पड़ता. तो हर 2 बस फिर निकालेंगे. फिर 3 साल बोलता तो एक बार और निकालते. 4 साल बोलता तो एक बार और निकालते. ये चीज नहीं करेंगे. जब टाइम 1 ईयर है 2 ईयर रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई. 3 ईयर रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई. 4 ईयर रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई. ओके, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज. रेट कितना है 10% पर एनम.
टाइम कितना है 1 ईयर, अगर 2 साल रहता तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 रहता तो मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 10 1 जा 10 रुपीज। ओके, अब आपको निकालना क्या था अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल की जगह पर कितना 100 प्लस एसआई, एसआई की जगह पर कितना 10, तो कितना हो जाएगा 110 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में अंतर क्या है। और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपीज है, दैट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज, रेट इक्वल टू 10% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 2 ईयर। ओके, अब आपको अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू डायरेक्टली निकाल देंगे, प्रिंसिपल के जगह पे 100, रेट के जगह पे 10, टाइम के जगह पर 2 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट गया, सिंपल इंटरेस्ट 10 2 जा 20 रुपीज। तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस एसआई कितना है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 रुपीज मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ओके, अगर हम लोग इसी चीज को कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाले तो वहां पर फॉर्मूला अलग और कंसेप्ट भी अलग। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग 2 साल का एक बार निकाल दिया, अगर हम लोग बारी बारी से निकालते तो पहले साल का 10% होता, 10 बाई 100 इंटू 100 कट गया, कितना आ गया 10 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए। फिर से सेकेंड ईयर के लिए निकालते अगर हम लोग बारी बारी से, तो सेकेंड ईयर के लिए भी कितना परसेंट 10%, 10 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, फिर से कितना रुपीज 10 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मेरा पैसा 100 रुपीज, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना 10 रुपीज, सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना 10 रुपीज, सबको जोड़ते हैं 100 प्लस 10 प्लस 10 120 रुपीज। ओके, दिस इज ऑफ द फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल फिक्स्ड है 100 रुपीज जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा आपका प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज, रेट इक्वल टू 10% पर एनम और टाइम इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10% अगर हम लोग निकाले तो 10 बाई 100 इंटू 100 कट गया, कितना आ गया 10 रुपीज। तो पहले साल के लिए यहाँ भी 10 रुपीज था और यहाँ भी कितना आ गया 10 रुपीज। तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। अब आती है बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये 10 रुपीज, तो एक साल के बाद अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा, एक साल के बाद अमाउंट मिलेगा 100 रुपीज और प्लस 10 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया 110 रुपीज। अब आती है बात सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज नहीं होगा, सेकेंड ईयर में मेरा पैसा बदल गया। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो गया 110 रुपीज। तो सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल बन जाता, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में चाहे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, चाहे सेकेंड ईयर का, चाहे थर्ड ईयर का, उसका जो भी अमाउंट होगा
ठीक, जो भी अमाउंट होगा वही उसका प्रिंसिपल रहता है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल 100 सब जगह, सब फर्स्ट ईयर में भी प्रिंसिपल, सेकंड ईयर में भी 100, थर्ड ईयर में भी 100, फोर्थ ईयर में भी 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है और उससे जो हमको अमाउंट मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल कितना 110 और फिर से रेट कितना 10% पर एनम और टाइम कितना 1 ईयर। तो अब हम लोग निकालेंगे 10% यानी कि 10/100 किसका 110। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिल गया 11 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हमको कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट सबसे फर्स्ट ईयर कितना मिला 110 रुपीज, प्लस सेकेंड ईयर में कितना मिला 11 रुपीज, दोनों का ऐड कर देंगे तो 121 रुपीज। ओके, लेकिन हम लोग को यही कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिल रहा था 120 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला 121 रुपीज। तो बैंक जो भी ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, बैंक जो भी लेन देन करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपके समझने के लिए है, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक करेंगे या कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन करता है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो भी आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये अंतर है। अगर कोई पूछे सिंपल सा बेसिक सा अंतर क्या है, सबसे पहला सिमिलैरिटी क्या है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों इक्वल, यानी कि फर्स्ट ईयर में ना सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज ना कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चेंज। अब आती है डिफरेंसेस क्या क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फर्स्ट डिफरेंस कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं करता है, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के बाद प्रिंसिपल चेंजेस। पहले साल तक तो वही 100 था, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद प्रिंसिपल जो है वो चेंज, और प्रिंसिपल हो क्या जाता है तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट। सिंपल याद रखिएगा, फर्स्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सबसे अच्छा लाइन, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर is the principal for second year. Amount for first year is the principal for second year. That is condition for CI. And what is the condition for simple interest? The condition for simple interest is very simple. The principal does not change throughout the year. There is no change in the principal. I hope it is clear to everyone. सो अब हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जिसके बाद आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस बनाकर भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्या क्या फॉर्मूला है? सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। आपको सब मालूम है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, डिवाइडेड बाई 100। वाई इट इज 100 बिकॉज R परसेंट का साइन हटेगा तो क्या आएगा 100। ओके, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर यहीं पे हमको प्रिंसिपल निकालने की बारी आए तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? 100 को उधर भेज देंगे तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू SI डिवाइडेड में क्या बच गया, प्रिंसिपल तो यहाँ आ गया तो R इंटू टी। सेम कंडीशन, अगर R निकालना हो रेट तो रेट के लिए हो जाएगा 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू टी, और अगर टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू R। ओके, बहुत सिंपल है। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड से आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए आएगा तो 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 इंटू SI, R इंटू टी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर फिर रेट निकालना तो रेट को यहीं छोड़कर 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू टी। टाइम निकालना हो तो टाइम को यहीं पर छोड़ देंगे 100 इंटू SI बाई P इंटू R। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अगर सिर्फ अमाउंट होगा तो प्रिंसिपल प्लस SI। अब यहां से भी आप SI निकाल सकते हैं। SI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अगर प्रिंसिपल निकालना है यहां से तो प्रिंसिपल इक्वल टू
amount minus SI. I hope it is clear to everyone. किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. These are the important formula. तो आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, it is your work to write it in your copy. This will be homework for your, that is 6th of August, I recall. That is today. आप जब भी वीडियो देखें तो ये आपका आज का होमवर्क होगा to note down all the things in your copy. I hope you enjoyed this video. आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और थ्रू व्हाट्सएप. प्लीज डू like and subscribe the channel if you want to see such amazing updates. So thank you all for today. Hope to see you in my next video. Take care of you all.